my daughter have a huge respect for this culture, and from the root I come from. It is very important that we cherish and celebrate these cultures and give it forward to our future generations. We will learn a lot of unique practices like sustainability, awareness of our rich culture and art. Thank you, sir. बहुत बहुत आभार श्रीमती डी.एन. सोया सिद्धिका जी का। निवेदन केंद्रीय डोनर राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। Namaste to all of you. Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Governor of Telangana Sri Jishnu Dev Barma ji, Honorable Union Minister of Culture and Tourism Sri Gajendra Singh Shekhawat ji, Honorable Governor of Nagaland Sri La Ganeshan ji, Honorable Governor of Arunachal Pradesh Lieutenant General K. T. Vikram Parnaik ji, Honorable Governor of Assam and Manipur Sri Lakshman Prasad Acharya ji, Honorable Governor of Tripura Sri Indrasena Reddy Nannul ji, Honorable Governor of Meghalaya Sri C.H. Vidyasankar ji, Honorable Governor of Sikkim Sri Om Prakash Mathur ji, Honorable Minister of Government of Telangana Srimati D. Anushya ji, and distinguished guests and beloved citizen. Namaskar once again. I am filled with a sense of immense honor and joy as I address you today at the inaugural ceremony of Bharatiya Kala Mahotsav, a magnificent festival that mirrors the rich cultural tapestry of our northeastern states. On this auspicious occasion, I offer my profound gratitude to our Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji for her visionary foresight of transforming all presidential estates into epicenters of cultural amalgamation. Her inspiring my mission has been catalyst for the inception of this noble initiative. The Ministry of Donor is grateful to Madam President for the opportunity given to the ministry to promote the northeastern region through this unique initiative. The Bharatiya Kala Mahotsav is more than just an event. It showcases the diverse culture of northeastern region. This region is known for its cultural richness and breathtaking natural beauty. From the peaceful root bridges of Meghalaya to the lively festivals of Assam, the northeast is full of tourist attraction. The untouched beauty of Arunachal Pradesh, the vibrant culture of Nagaland, the rich history of Manipur, and the majestic mountains of Sikkim are just some of the wonders you can experience. I urge everyone to explore the Northeast before looking for adventures abroad. Beyond its scenic allure and cultural treasures, the Northeastern region is brimming with opportunities for entrepreneurship and investment, with vast potential for economic progress, trade, and cultural exchanges. The region is teeming with prospect for those eager to delve into sectors such as tourism, handloom, handicraft, and agricultural-based industries. Our government, under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, has launched numerous initiatives to tap into this potential. We are committed to closing the infrastructure gap and improving the connectivity, empowering the local populace. The Bharatiya Kala Mahotsav is a pivotal event to highlight these opportunities and resources to a wider audience. This festival celebrates not only the commerce but the very spirit of the NER. It is an invitation to savor the hospitality of our tradition, the harmony of our music, and the splendor of our arts.
Let us together cherish the abundance of the NER, explore its wonders, and contribute to its development. Let us join hands to realize the full potential of the Northeast and construct a region that stands as a symbol of prosperity and unity for our entire country. Thank you all, and I wish the Bharatiya Kala Mahotsav great success in showcasing the true essence of the Northeast. Jai Hind. बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी का। देवी सज्जनों, आप जानते हैं कि भारतीय कला महोत्सव के आयोजन में डोनर मंत्रालय के साथ संस्कृति मंत्रालय की भी सक्रिय भागीदारी है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। भारतीय कला महोत्सव के शुभारंभ में इस गरिमामयी कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित भारत की सम्माननीय राष्ट्रपति श्रद्धेय द्रौपदी मुर्मू जी, मंच पर उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल सम्माननीय श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, मंच पर उपस्थित भारत की अष्टलक्ष्मी पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यों के सम्माननीय राज्यपाल, मंत्रिमंडल में मेरे साथी और डोनर मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री सुकांता मजूमदार जी, तेलंगाना की पंचायती राज मंत्री और महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमती डी अनुसैया सीताक्का जी, सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण और इस विविधताओं से भरी हुई संस्कृति को एक बार फिर इस दक्षिण भारत के एक प्रख्यात ऐतिहासिक शहर में जीवंतता प्रदान करने वाले सभी साथियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। आज जब राष्ट्रपति निलयम में हम भारत की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति के एक रंग को नए रूप से साकार होते हुए यहां दक्षिण भारत में देख रहे हैं, मुझे छांदोग्य उपनिषद का एक श्लोक याद आता है, तत्त्वम असि, अर्थात वह तुम ही हो। और भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक दूसरे से जोड़े रखने का सार इस श्लोक में हम सबको प्रतीत होता है। भारत की विविधताओं से भरी हुई संस्कृति जिसके विभिन्न रूप हैं, विभिन्न रंग हैं, लेकिन इस विविधताओं से भरी हुई संस्कृति में अनेक ऐसी चीजें हैं जो हमें एकता के सूत्र में बांधती है, एकता के सूत्र में निबद्ध करती है। हमारी धार्मिक आस्थाएं, हमारी परंपराएं जो हम सबको जोड़ती हैं, उसके साथ साथ में सम्मानीय राष्ट्रपति महोदया के प्रयास से, उनके इनिशिएटिव से आरंभ हुआ आज का ये समारोह और ये 7 दिन का उत्सव, निश्चित रूप से ये भारत कला महोत्सव भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम होगा। यह आयोजन एक आज ऐसे स्थान पर हो रहा है जो भूतकाल में औपनिवेशिक शासन का प्रतीक था, लेकिन सम्मानीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह से विकसित भारत का संकल्प देश के सामने रखते हुए, देश को संकल्प के साथ में जोड़ते हुए कि हम औपनिवेशिक भारत की ऐसे गुलामी के सारे प्रतीकों से दूर होकर के हम अपने देश को विकसित बनाएंगे, उस सूत्र की जब मैं चर्चा करता हूं तब ये राष्ट्रपति निलयम का परिसर निश्चित रूप से उसका उदाहरण है कि हम औपनिवेशिक भारत की छाया से बाहर निकल करके विविधताओं से भरी हुई इस संस्कृति को लोकतंत्र के इस प्रतीक के में आज आयोजित कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासतों की, उत्सवों की इस परंपरा में सम्मानीय राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में, उनके इनिशिएटिव से इसी वर्ष 8 से 11 फरवरी तक राष्ट्रपति आवास नई दिल्ली में इसी तरह का पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का महोत्सव आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ भी सम्मानीय राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ था। सम्मानीय राष्ट्रपति जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि पूर्वोत्तर की समृद्ध विरासत को संभालने, इसे संजोने और सहेजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कहा था कि उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक विविधता से भरी हुई परंपराएं हम सबको गर्वित करती हैं। इस महोत्सव का उद्देश्य अपने पूर्ववर्ती समारोह की भांति भारत की समृद्ध कला,
भारत की समृद्ध कलात्मक धरोहर को प्रमोट करने के साथ साथ में राष्ट्रपति जी के विजन के अनुरूप विविध क्षेत्रों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों और राष्ट्रीय एकता को एक नई मजबूती प्रदान करना भी है। इस समारोह में जो पवेलियंस बनाए गए हैं, पूर्वोत्तर के अष्टलक्ष्मी राज्यों के विशेषताओं के साथ साथ में 200 ऐसे कलाकारों की प्रतिभा को यहाँ दर्शाया गया है, जिन्होंने अपनी हस्तकला के शक्ति के आधार पर अपने राज्यों को की परंपरागत संस्कृति और कला को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। यहाँ एक लाइव डेमो पवेलियन भी बनाया गया है, जहाँ कलाकार 10 भारतीय शिल्प का डेमो दिखाएंगे। एक जीआई टैग उत्पादों के पवेलियन को भी यहाँ दर्शाया गया है, जिसमें 31 प्रकार के ऐसे उत्पाद जिनको जीआई टैगिंग मिली है, जिनकी इंडिजीनियस ऑर्गेनिक लाइव वैल्यूज हैं, ऐसे उत्पादों को भी यहाँ दिखाया गया है। इस समारोह में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध खान-पान परंपरा और विविधताओं से भरी हुई खान-पान परंपरा और पारंपरिक व्यंजनों का भी यहाँ हम सबको रसास्वादन करने का अनुभव मिलेगा। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर के कलाकारों और शिल्पकारों के लाइव डेमो को अनुभव करने के साथ साथ ही पारंपरिक स्किल्स को सीखने का भी अवसर यहाँ आने वाले दर्शकों को ऐसा मिलने वाला है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जैविक खेती की जहाँ अपार संभावनाएं हैं, सिक्किम, मेघालय, असम ने पिछले कुछ वर्षों में जैविक खेती की दिशा में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, इस पूर्वोत्तर क्षेत्र की अपनी जैविक खेती के साथ साथ पर्यटकों को भी जैविक खेती के साथ में जुड़ने का और उसके उत्पादों का आस्वादन करने का अवसर इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगा। इसके साथ साथ में जो विशाल पर्यटन की संभावनाएं, जैसा अभी आदरणीय सुकांत मजूमदार जी कह रहे थे कि पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह की अपार प्राकृतिक संसाधनों की धनराशि भरी है, समाहित है, उसका दर्शन करने की एक प्रेरणा भी इसके माध्यम से हमारे दक्षिण भारत के निवासियों को निश्चित रूप से सम्माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा की गई इस इनिशिएटिव के चलते मिलेगी। आज के समारोह का उद्देश्य निश्चित ही दक्षिण भारत में पूर्वोत्तर भारत के प्रति जागरूकता और उत्सुकता को जगाने के साथ साथ में इसकी समृद्ध शिल्पकला, इसकी यहाँ की लोगों की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत से दक्षिण भारत को परिचित कराना है। और निश्चित ही इस गरिमामयी कार्यक्रम से जिस समारोह की शुरुआत हुई है, ये समारोह इस दिशा में अत्यंत सफल होगा। मैं एक बार फिर सम्माननीय राष्ट्रपति जी का उनके द्वारा लिए गए इस इनिशिएटिव और उनके द्वारा की गई शुरुआत के माध्यम से जिस तरह से भारत की सांस्कृतिक विविधता को आज देश में एक बार फिर नए सिरे से लोगों तक पहुंचाने के प्रयास के चलते हुए जो ऊंचाई मिलेगी, उसके लिए माननीय राष्ट्रपति जी का मैं हृदयपूर्वक आभार ज्ञापित करते हुए आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। माननीय राज्यपाल तेलंगाना श्री जिष्णुदेव वर्मा जी से निवेदन है कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय राज्यपाल महोदय। Srimati Draupadi Murmu ji, respected Honorable President of India, Sri Gajendra Singh ji, Honorable Minister of Culture and Tourism, Sri La Ganeshan, Honorable Governor of Nagaland, Lieutenant General Trivikram Paranaik, retired Honorable Governor of Arunachal Pradesh, Sri Lakshman Prasad Arya, Honorable Governor of Assam and Honorable Governor of Manipur, Sri Indrasena Reddy Nallu, Honorable Governor of Tripura, Sri Vijay Shankar, Honorable Governor of Meghalaya, Sri Om Prakash Mathur, Honorable Governor of Sikkim, Sri Sukanta Majumdar, Honorable Minister of State for Development of Northeastern Region, Srimati Anuswaya Chitaka, Honorable Minister for Panchayati Raj and Rural Development, Government of Telangana. It is a great honor to stand before you today as we celebrate the rich cultural heritage of our northeastern region. A region close to my heart, which holds a distinctive place in India's vibrant and diverse identity. At the outset, I extend my heartfelt gratitude
to the Honorable President of India for envisioning the wonderful concept of the first edition of Bharatiya Kala Mahotsav taking place from 29 September to October 6, 2024 at the Rashtrapati Nilayam, Hyderabad, a city renowned for its rich heritage, seamless fusion of tradition and modernity, timeless spirit of hospitality, and shining gem of culture, innovation, unity, and diversity. In fact, my excitement is doubled as the festival of my native region is being celebrated for the first time in the very state where I have the honor of serving as governor. The Honorable Governors are of the Northeastern region. I am from the Northeastern region. The 8 states of this region contribute profoundly to our nation's vibrant cultural richness. Each state is a gem showcasing unique traditions that reflect their history, values, and way of life. Arunachal Pradesh, the land of the rising sun, shines through the Losar festival where the people celebrate New Year with traditional dances and prayers symbolizing renewal of the deep connection between the community and nature. In Assam, the heartbeats of the rhythm of the Bihu, a festival that celebrates the new year with joyous dances and music. Bihu is an ode to the agrarian lifestyle representing fertility, unity, and the Assamese strong bond with their land. Manipur, the jewel of India, is home of the divine Ras Leela, a classical Manipuri dance depicting the love story of Lord Krishna and Radha. This graceful dance form embodies devotion and spirituality, a signature of Manipuri heritage. In Meghalaya, we witness the sacred Nongkrem dance, a traditional Khasi harvest celebration. It is performed to offer gratitude to the Almighty for a bountiful harvest, illustrating the Khasi people's harmony with nature. Mizoram captivates with the iconic Chiro dance or bamboo dance, a graceful performance where dancers rhythmically step between clapping bamboo sticks. It represents the Mizo people's strength, unity, and cultural pride. Nagaland, the land of festival, presents its cultural richness through the Hornbill Festival, where all Nagas come together to celebrate their traditions, history, folklore, embodying unity in diversity. Tripura showcases the mesmerizing Hosagiri dance. This unique dance where women balance pitchers and lamps on their heads as a symbol of balance, grace, and resilience, reflecting the community's close connection with their land. In Sikkim, we celebrate the Lusong festival, which marks the end of harvest season and beginning of the Sikkimese New Year. This vibrant festival featuring traditional masked dances represents the unity and spiritual depth of Sikkimese culture. The northeastern states are rich in biodiversity, and it embodies the spirit, as the Honorable Minister for Culture has said, Tattvamasi, I am that. Each state is unique in its own way, yet when they come together, they showcase India with the spirit of unity in diversity. As we embrace modernity, it is essential to preserve these timeless traditions that are not only their heritage, but a treasure of our nation and world. Honorable President, ladies and gentlemen, as we celebrate these extraordinary cultures, let us remember that the traditions are an integral part of India's heartbeat. They remind us that our diversity is our strength, and this diversity makes India one of the greatest nations on earth. I would like to extend my sincere thanks to all the governors, artists, and their dedicated supporting staff from the northeastern states for their participation in this remarkable event. Finally, I would like to express my sincere thanks to the office and staff of Rashtrapati Bhavan and Rashtrapati Nilayam, as well as the Ministry of Development of the Northeast region and the Ministry of Culture for organizing this captivating and memorable event. Thank you. Jai Bharat. Jai Hind. बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल महोदय का। मैं अब विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वे इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया।
भारतीय कला महोत्सव में उपस्थित तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णु देव वर्मा जी, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, नागालैंड के राज्यपाल श्री ल गणेशन जी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल कैबल्य त्रिविक्रम पटनायक जी, असम और मणिपुर के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, त्रिपुरा और मिजोरम के राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी नेल्लू जी, मेघालय के राज्यपाल श्री CH विजय शंकर जी, सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर जी, उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, तेलंगाना सरकार में मंत्री श्रीमती D अनुसया सीतक्का जी, गणमान्य अतिथिगण, नॉर्थ ईस्ट से आए कलाकारगण, देवियों और स्वजन, आज हम सब राष्ट्रपति निलयम में देश की समृद्ध संस्कृति और विविधता में एकता का उत्सव मना रहे हैं। हम यहाँ पूर्वोत्तर भारत की अनूठी कला संस्कृति को जीवंत रूप से देख रहे हैं। मुझे यहाँ के पवेलियंस में उत्कृष्ट हस्तशिल्पी, हथकरघा और अन्य कलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्वोत्तर के GI उत्पादों से लेकर असम के माजुली मास्क, त्रिपुरा के रंगमाई कपड़ा, अरुणाचल प्रदेश के मोम्पा वस्त्र और मिजोरम के उचेंग कपड़ा, प्रत्येक उत्पाद अपने आप में अनूठी है। नागालैंड के कारीगरों द्वारा नेटल यार्न की हैंड स्पिनिंग, मणिपुर के लोटस स्किल निकालने की प्रक्रिया, मेघालय की खेनेक कढ़ाई और सिक्किम की थंका पेंटिंग को देखकर बहुत अच्छा महसूस हो रही है। देवियों और स्वजनों, पूर्वोत्तर के राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, उनके लोकनृत्य, संगीत, कला और पारंपरिक पहचान हमारे देश की धरोहर है। ये क्षेत्र की परंपरा और समुदायों की जानकारी से सभी देशवासियों को और अधिक परिचित कराने की दिशा में ये महोत्सव एक प्रयास है। मुझे विश्वास है कि ये सांस्कृतिक उत्सव पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। मुझे आशा है कि अगले 8 दिनों में अधिक से अधिक लोग इस महोत्सव में आएंगे, पूर्वोत्तर की संस्कृति के साथ जुड़ेंगे और इसे अपने यादों में संजो कर ले जाएंगे। ये उत्सव सांस्कृतिक आदान प्रदान का बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। पूर्वोत्तर की परंपराओं और प्रतिभाओं को आगे लाकर हम सब इन राज्यों के कारीगरों, कलाकारों और समुदायों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनकी प्रतिभा को व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचाने तथा उनके विकास के नए अवसर पैदा करने के लिए एक मंच भी प्रदान कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने अतिथि सत्कार, परिश्रम और उत्साह के लिए जाने जाते हैं। मैं जब भी वहाँ के राज्यों में गई हूँ, मुझे लोगों का भरपूर स्नेह मिला है। इस वर्ष फरवरी में राष्ट्रपति भवन में विविधता का अमृत महोत्सव आयोजन किया गया था। ये भारतीय कला महोत्सव उसी की अगली कड़ी है। उस उत्सव के दौरान हमने अपने देश के सांस्कृतिक विरासत के बारे में लोगों के उत्साह और जिज्ञासा को देखा था। उस पहल से प्रेरित होकर इस उत्सव को सिकंदराबाद में आयोजित किया गया है। देवियों और स्वजनों, हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सहेजना और इसे आगे वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत की पहल के अंतर्गत राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति भवन के साथ साथ राष्ट्रपति निवास,
शिमला और राष्ट्रपति निलयम सिकंदराबाद के द्वारा सामान्य लोगों के लिए खुले रहते हैं। इस संप्रदायों का भ्रमण करके लोगों को हमारे देश के समृद्ध विरासत और संस्कृति के बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। मैं सभी कलाकारों और कारीगरों की सराहना करती हूँ जो इस महोत्सव को सफल बनाने के लिए यहाँ आए हैं। आपकी प्रतिभा और समर्पण प्रशंसनीय है। मैं इस आयोजन के लिए डोनर मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की भी सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि सभी संस्थाओं की ओर से सामान्य जन की भागीदारी से ये प्रयास सफल होंगे। मैं विशेष आग्रह करना चाहूँगी कि तेलंगाना के राज्यपाल और यहाँ उपस्थित मंत्री अनुसुईया जी को कि ये विशेष इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी दायित्व लेंगे, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए और उत्तर पूर्व की संस्कृति परंपरा उसके कला को देखें, सराहें और उनको प्रोत्साहित करें। इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति महोदया का। उन्हीं की प्रेरणा से हैदराबाद में और वो भी निलयम में पूर्वोत्तर भारत पर केंद्रित ऐसा महत्वपूर्ण आयोजन हो रहा है और वो भी आपके हाथों इसका शुभारंभ हुआ है। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। देवी और सज्जनों, अब समय है मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुति का, जिसमें आप उत्तर पूर्व की बहुत ही समृद्ध संस्कृति और वहां के 8 राज्यों की प्रसिद्ध प्रदर्शन कलाओं पर आधारित एक कोरियोग्राफी को यहां मंच पर आकार लेते और सजीव होते देखेंगे। मंचासीन विभूतियां, जिनमें माननीय राज्यपाल, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, पूर्वोत्तर राज्यों के सभी माननीय राज्यपाल और तेलंगाना सरकार में मंत्री डॉक्टर अनुसुईया सितक्का जी सामने दर्शक दीर्घा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और इस बीच सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए देवी सज्जनों, मंच की व्यवस्था जो है उसमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता होगी, तो थोड़ा सा समय उसके लिए हम अवश्य लेंगे ताकि अगली प्रस्तुति बिना किसी विघ्न के आपके समक्ष हम उसे रख सकें। पूर्वोत्तर की संस्कृति अपने आप